Dr. Monica to take over and welcome our speaker as well and introduce our speaker to the audience. Over to you, Dr. Monica. Thank you, Dr. Amita. Can you hear me? Yes, yes, you can. Very good evening and warm welcome to all. And today we have a very well-known personality, Dr. A.K. Dwivedi, with us, who is totally dedicated towards homeopathy and doing great work. Apart from BHMS MD, he is also MBA, PhD, FSCH, and MA in Yoga and Psychology. He is founder and CEO of Advanced Homeo Health Center and HMR Private Limited, Indore, Advanced Homeopathic Medical Research एवं Welfare Society, Advanced Ayush Wellness Center, Indore, Advanced Institute of Paramedical Sciences, Indore, Advanced Yoga and Naturopathy Hospital, Indore, Ayush Medical Welfare Foundation, Indore. With so many feathers in his cap, he is also professor and HOD of Physiology and Biochemistry in SKRP Gujarati Homeopathic Medical College, Indore. And since May 2015, he is member of Scientific Advisory Board, Central Council for Research in Homeopathy, Ministry of Ayush, Government of India. He is editor of Sehat Evam Surat, National Hindi Monthly Medical and Health Magazine. He has translated book in Hindi, Homeopathic Self-Healing Guide, written by Dr. Shiv Duaji. He is author of books Human Anatomy and Physiology, आधुनिक प्राकृतिक चिकित्सा, कोरोना के साथ और कोरोना के बाद, संशय से समझदारी. And he has presented many research papers and articles. He is recipient of many international, national and state level awards for his immense contribution in the field of homeopathy. He has done many seminars on aplastic anemia awareness and holds many free camps with various organizations. He also provides free homeopathic treatment to jail inmates and prisoners and martyr soldiers' families. He also organizes seminars and workshops to promote homeopathic medicine. And with a vision to establish world-class Homeo Hub in India, he has a mission to integrate all the branches of medical sciences with an objective of providing the best medical treatment to the people for a healthy life. And friends, it is a matter of great pride and pleasure that due to his efforts and suggestions, our Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced setting up a mission for sickle cell anemia free country by 2047 in the budget 2023. So we are thankful to you, sir, and we are honored to have you here with us today. We welcome you and over to you, sir. थैंक यू मोनिका जी। मुझे लगता है ये डॉक्टर अमिता के कारण हुआ होगा। अमिता ने सिकल सेल एनीमिया पे ये लेक्चर रखा, तो इसलिए वो वित्त मंत्री ने उसको बजट में डाल दिया होगा। तो इसलिए अमिता जी को बहुत सारा धन्यवाद। उसका देखो इतना विजनरी है कि उसने पहले से ही प्लान कर रखा था। जस्ट आफ्टर बजट वी विल हैव अ लेक्चर ऑन सिकल सेल एनीमिया। So nice. मिनिस्टर से बात हो गई होगी, इसलिए उसने करा लिया। दिल्ली में रहती ना तो सब करा लेती है वो। बहुत पहुंच है सर उसकी। यस, बहुत पहुंच है। थैंक यू टू ऑल फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। मुझे लग रहा था कि मैं इतना सारा कर लेता हूँ, पता नहीं कैसे कैसे हो रहा है। ड्यू टू ग्रेस ऑफ गॉड ऑब्वियसली। आज का मेरा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया, तो मैं डायरेक्ट सिकल सेल एनीमिया पे ही जाता हूँ, फिर बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से एनीमिया के डिफरेंट टाइप पे वर्क कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं कि एनीमिया की बात आई कैसे मेरे जहन में, तो एज यू गॉट माय इंट्रोडक्शन कि मैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में। तो मैं ब्लड ही पढ़ाता हूँ, और जहां भी एग्जाम लेने जाता हूँ तो बच्चों से पूछता हूँ कि फिजियोलॉजी पढ़ के आए हो, तो बोलते हाँ पढ़ के आए। तो बोले क्या पढ़ के आए, तो बोले ब्लड पढ़ के आया। और हमारे यहाँ के भी बच्चों को पूछते हैं तो वो सब बोलते हैं कि फिजियोलॉजी पढ़ा, तो बोले हाँ। क्या पढ़ा, तो बोले ब्लड पढ़ा। तो मतलब फिजियोलॉजी का सिनोनिम सी ब्लड हो गया है, ऐसा हो गया है। पिछले 25 सालों में मैं देख रहा हूँ कि जहां भी पूछने जाते हैं तो वहां वाइवा में बच्चे बोलते ब्लड पढ़ा। तो ब्लड में क्या पढ़ा, ब्लड के फंक्शंस पढ़ा। तो इस तरीके से देखिए तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्टली एजुकेशन में होने से ब्लड से बहुत क्लोजली रिलेटेड हूँ। और ब्लड में देयर आर 3 सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट।
which are suspended in the plasma. तो सिकल सेल की परेशानी क्या है और सिकल सेल इतनी प्रॉब्लमेटिक कैसे है? सिकल सेल मींस जो नॉर्मल ब्लड सेल है, जो नॉर्मल आरबीसी है, दैट इज राउंडेड और डम सेल, जबकि सिकल सेल में क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप है वो चेंज होकर के हाफ मून या सिकल जैसा हो जाता है। यस, दिस इज द स्लाइड। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल आरबीसी है दैट इज राउंडेड एंड जो सिकल है दैट इज द इन द सिकल सेल या हाफ मून शेप। तो इस तरीके से उसका शेप चेंज हो जाना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया और ये हेरिडिटी में आती जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं कि सिकल सेल एनीमिया के रोकथाम के लिए और इलाज के लिए डॉक्टर्स ने आगे आना चाहिए और चिकित्सक वर्ग ने इसके इलाज के लिए या फिर रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। अभी 25 मई 2022 को हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने एक बहुत ही उच्च स्तरीय मीटिंग कॉल किया था मध्य प्रदेश के राजभवन में, मतलब राज्यपाल हाउस में, और उसमें मुझे बुलाया गया था बोलने के लिए कि होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं। और इंदौर में अभी 10 जनवरी को जब माननीय राष्ट्रपति महोदय आई थी तो उनका भी मेरे से यही प्रश्न था कि क्या सिकल सेल एनीमिया होम्योपैथी से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जाने कि सिकल सेल होता क्या है। सिकल सेल डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मॉडिफिकेशन इन द शेप ऑफ द रेड सेल्स फ्रॉम अ स्मूथ एंड राउंडेड शेप इनटू अ क्रिसेंट और हाफ मून शेप। ये सभी को पता है। तो उससे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? जब हमारा ये सिकल शेप हो जाता है तो ड्यू टू दिस प्लास्टिसिटी ऑफ द रेड सेल्स इज डिक्रीजेस एंड जो ब्लड वेसल्स है उसमें उसका फ्लो अल्टर होने लगता है। दिस कंडीशन लीड्स अ शॉर्टेंड रेड ब्लड सेल्स सर्वाइवल एंड सब्सिक्वेंट एनीमिया ऑफन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। इसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी होती चली जाती है, एनीमिया हो जाता है और मरीजों को बहुत सारी परेशानी होने लगती है। हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनका चीफ कंप्लेंट्स क्या रहता है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है। जब हमारी आरबीसी कम हो जाएगी तो उनको वीकनेस लगेगी। उसके अलावा सिकल सेल डिसीजेज में अगर आप देखेंगे तो सिकल सेल डिसीजेज में उनको पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। पेन के कारण काफी लोग परेशान है। तो उसका कारण क्या है? द सिकल सेल shaped are not flexible and cannot change shape easily। जो हमारी राउंडेड सेल्स रहती है वो इजिली स्क्वीज हो सकती हैं, जबकि जो सिकल सेल ले लेती है सिकल सेल वो उतना जल्दी स्क्वीज नहीं होती है। मेनी ऑफ देम बस्ट अपार्ट, दे मूव थ्रू योर ब्लड वेसल्स। जब वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करती हैं तो चूंकि उनका शेप ऑलरेडी सिकल है, राउंडेड नहीं है या ओवल नहीं है, तो वो और फर्दर चेंज नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो ब्रस्ट हो जाती हैं। The sickle cell usually lasts 10 to 20 days instead of normal red blood cell life span। अगर मैं रेड ब्लड सेल के नॉर्मल लाइफ स्पान की बात करूं तो दैट इज 90 to 120 डेज, जबकि जो सिकल सेल है उसका लाइफ स्पान जो है वो 10 to 20 डेज हो जाता है। तो इस तरीके से हर थोड़े थोड़े दिन में हमको ब्लड की कमी हो जाती है और मरीज को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? द कॉज ऑफ सिकल सेल डिसीज इज अ डिफेक्टिव जीन एंड इज कॉल्ड सिकल सेल जीन। द पीपल विद डिसीजेस आर born with two sickle cell gene, one from each present। About 1 in 13 African या American baby is born with the sickle cell trait, and 1 in every 365 black children is born with the sickle cell disease। एक सिकल सेल ट्रेड है और दूसरा सिकल सेल डिसीज है। सिकल सेल डिसीज also affect some people who come from हिस्पैनिक, साउथर्न यूरोप, मिडल ईस्टर्न या फिर एशियन इंडियन बैकग्राउंड। अगर मैं इंदौर की बात करूं तो इंदौर के आसपास जो जिला है, जैसे धार है, हमारे यहाँ धार में राजगढ़ है और इंदौर के पास में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आदिवासी बहुल बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों में सिकल सेल बहुत ज्यादा पाया जाता है।
उसके कारण हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, वो बहुत चिंतित हैं और उनका ये है कि हम लोग पूरा स्क्रीनिंग कर लें कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कितने सिकल सेल पेशेंट्स हैं। अगर मैं बोलूं तो भारत में मध्य प्रदेश सिकल सेल डिसीजेस का कैपिटल जैसा डेवलप हो रहा है। मेरे पास काफी सारे पेशेंट आते रहते हैं और पेशेंट जो आते हैं उसमें एक प्रॉब्लम है कि जिनको परेशानी रहती है, अगर मेल को परेशानी है तो वो छुपा करके शादी कर लेता है, फीमेल को परेशानी है तो उसके घर वाले भी छुपा करके शादी कर लेते हैं। तो छुपा करके शादी करने से क्या होता है कि ये जेनेटिक डिसीज है तो अगली पीढ़ी में चली जाती है। तो अगर वो छुपा करके शादी करना बंद कर दें तो हम काफी हद तक इसको रोक पाएंगे। उसके लिए मैं इंदौर के सांसद जी से बात किया और उनको बोला कि लोकसभा में ये बात उठाई जाए, जिस तरीके से कुंडली मिलान करते हैं उस तरीके से अगर सिकल सेल एनीमिया या थैलासीमिया के लिए ब्लड की जांच पहले ही कर ली जाए तो उसमें काफी राहत हो जाएगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? अभी आप देखेंगे कि एड्स के लिए बहुत सारा प्रचार आता है कि एड्स की जांच पहले कर ली जानी चाहिए। उसी तरीके से गवर्नमेंट ने इस तरीके से प्रचारित करना चाहिए कि जिस बेल्ट में सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट ज्यादा हैं उसमें शादी के पहले ही उनकी ब्लड जांच होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट किया था कि जब बजट में प्रोविजन आएगा तब इस पे लोग काफी काम करेंगे। मैं जब यहाँ पे सीनियर डॉक्टर से बात करा कि आखिर एनीमिया इतनी गंभीर समस्या है लेकिन उसके लिए डॉक्टर्स इतना प्रयास क्यों नहीं करते, तो उनका ये कहना था कि इसमें मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं होता है, डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और पेशेंट को चूंकि पहले ही पता होता है कि उसको ये बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता है तो उनकी सफरिंग और बढ़ती चली जाती है। जिस जिस पेरेंट्स को बच्चा पैदा होता है और उसको 4 से 6 महीने में ये पता चल जाता है कि उसके बच्चे को सिकल सेल एनीमिया है या थैलासीमिया है, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि इसका किसी भी चिकित्सा पद्धति में इलाज नहीं है। तो आप सोचिए कि उस पेरेंट्स पे कितना दुख होता होगा, उसको कितनी परेशानी होती होगी, वो कहाँ जाए, किस सिस्टम के डॉक्टर से मिले, क्या इलाज ले, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। तो वो बहुत बड़ी समस्या होती चली जाती है। मैंने एक स्लाइड बनाया है जिसमें हमने नॉर्मल सेल और सिकल सेल की बात की है। नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होता है दैट इज बाइकॉन्केव या डिश शेप, और जो सिकल सेल होता है दैट इज द सिकल शेप। अगर नॉर्मल सेल को देखेंगे तो ये डिफॉर्मेबल रहता है जबकि सिकल सेल जो है वो रिजिड हो जाता है। इसी तरीके से नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल है उसका लाइफ स्पान 120 डेज होता है, जबकि सिकल सेल का जो लाइफ स्पान है दैट इज 20 डेज या लेस देन दैट। तो अगर 20 डेज उसका लाइफ स्पान है तो आप सोचिए कि हर 21 डेज में उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। अब हर 21 डेज में अगर उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा तो इतना ब्लड आएगा कहाँ से? तो उस पेरेंट्स की समस्या और अधिक बढ़ती चली जाती है। इतना ब्लड आएगा कहाँ से? और एक बार जब ब्लड के लिए अस्पताल में एडमिट होता है पेशेंट तो उसको ब्लड चढ़ाने के साथ साथ उसको पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक बार वो ब्लड चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 15 से 20 हजार रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। क्यों खर्च हो जाते हैं? क्योंकि ब्लड चढ़ाने के लिए एक तो ब्लड की जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग पूरा करनी पड़ती है, फिर अगर उसके पास डोनर अवेलेबल नहीं है तो डोनर से ब्लड परचेस करना होता है, और अस्पताल में ट्रांसफ्यूजन के लिए कुछ घंटे 8 से 10 घंटे उसको हॉस्पिटल में बिताना होता है, मतलब एक दिन का हॉस्पिटल का चार्जेस लग जाता है। कुल मिलाकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 15 से 20 हजार रुपए एक बार के ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लग जाता है, और इस तरीके से उसको हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। तो ये समस्या बहुत कठिन होती चली जाती है। तो इसलिए इस पे मैंने काम करने का सोचा और मुझे काफी अच्छी सफलता मिल रही है। पूरा तरह से पेशेंट तो अभी सिकल सेल एनीमिया का कोई भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन उनको आराम काफी ज्यादा होने लग गया। तो उस तरीके से जब मरीज को आराम होने लग गया तो हम उस पर और अधिक काम करने लग गए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट।
यस, आप देखेंगे तो अगर पेशेंट को परेशानी है तो उसमें दो तरह के का मैनिफेस्टेशन दिखता है। एक तो एक्यूट मैनिफेस्टेशन, दूसरा क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन। एक्यूट मैनिफेस्टेशन में देखेंगे तो उसको बैक्टीरियल सेप्सिस या मेनिंजाइटिस हो सकती है, स्प्लेनिंग स्क्विंटेशन हो सकता है, अप्लास्टिक क्राइसिस हो सकती है, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, पेरियापिज्म हो सकता है, हीमेचूरिया हो सकता है और पैपिलरी नेक्रोसिस हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप क्रॉनिक मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो सकता है, स्प्लीनोमेगेली हो सकती है, फंक्शनल अस्प्लीनिया हो सकती है, कार्डियोमेगेली हो सकती है, फंक्शनल मर्मर्स आ सकता है, हाइपोस्थेनुरिया हो सकता है या एनुरेसिस हो सकती है, प्रोटीनीमिया हो सकती है, कोलिलिथियासिस हो सकती है, डिलेड ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन हो सकता है, देन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, अवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी हो सकती है, लंग अल्सर्स हो सकता है या फिर ट्रांसफ्यूजनल कीमोसिड्रोसिस हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि अगर उसको एनीमिया है और वो बार बार ब्लड चढ़ाता रहेगा तो उसके शरीर में आयरन का डिपोजिशन होने लग जाएगा। और मेरे पास काफी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनमें स्प्लीन में, लीवर में तो आयरन डिपोजिशन होता ही होता है, उनकी स्किन के ऊपर भी आयरन डिपोजिशन होने लगता है, जिसके कारण उनका जो कलर है वो डार्क होते चले जाता है। मतलब जो एनीमिया के साधारण से सिम्टम्स है, एनीमिया हो जाना, कहने का हो गया तो सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? कमजोरी। वो अपना दैनिक कार्य नहीं कर पाएगा, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, वो उसको ब्रीथलेसनेस, साथ साथ और क्या सिम्टम दिखता है गांव में जो पेशेंट रहते हैं वो बोलते हैं कि पीला दिखने लग गया। पीला दिखना इज आल्सो ए साइन ऑफ एनीमिया। लेकिन वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जॉन्डिस हो गया, क्योंकि उसका सीरम बिलिरुबिन स्लाइटली राइज हो जाता है। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा तो उससे आरबीसी का डिस्ट्रक्शन के कारण जॉन्डिस जैसे फीचर्स बॉडी में आने लगते हैं और समटाइम उसका सीरम बिलिरुबिन या एसजीपीटी बढ़ जाता है, तो लोग उसको जॉन्डिस करके ट्रीट करते हैं। उसके अलावा स्प्लीनोमेगेली हो जाती है, देन कार्डियोमेगेली हो सकता है, देन एनुरेसिस हो सकती है, प्रोटीनीमिया हो सकती है, कोलिलिथियासिस हो सकती है, डिलेड ग्रोथ हो सकता है या फिर रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस हो सकता है, अवास्कुलर नेक्रोसिस। मेरे पास अवास्कुलर नेक्रोसिस विथ सिकल सेल एनीमिया के काफी सारे पेशेंट आते हैं। सिकल सेल एनीमिया हो गया और उसके साथ उसको अवास्कुलर नेक्रोसिस हो गया। अवास्कुलर नेक्रोसिस क्या है? इसमें क्या होता है कि जो हमारा हेड ऑफ फीमर है वो खत्म होने लगता है, उसमें नेक्रोसिस होने लगता है और उसके कारण पेशेंट को चलने में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होने लगता है, कई बार लिंपिंग होने लगती है और इस तरीके से उसकी परेशानी और बढ़ती चली जाती है। तो इस तरीके से इस केस में केवल उस मरीज की सफरिंग नहीं है, उस परिवार की सफरिंग है। और इस तरीके से देखें तो हमारे देश की यह वर्ल्ड वाइड बर्डन है, इस डिसीज का वर्ल्ड वाइड सफरिंग है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। इस तरीके से देखें तो आप बर्डन ऑफ डिसीज अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 5% से ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन क्राइसिस जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द hemoglobinopathies, और worldwide it is estimated that there are 300 million people with sickle cell trait and 1/3 of these numbers are sub-Saharan Africa. Or in India, as estimated, 3% of the tribal population suffer from sickle cell anemia and another 23% crisis and transmit the sickle cell gene to their children. तो मेरा जो मेन जो फोकस है वो ये है कि जिस ट्राइबल पॉपुलेशन में सिकल सेल एनीमिया है, अगर हम उनको एजुकेट करें और वो शादी के पहले अगर टेस्ट करा ले तो हम जो उनके चिल्ड्रंस को ट्रांसफर होने वाली ये बीमारी है, आप देखिए कि 23% क्राइसिस एंड ट्रांसमिट द सिकल सेल जीन टू देयर चिल्ड्रन। तो हम इस बड़े परसेंटेज को रोक सकते हैं। केवल करना क्या है, शादी के पहले उनका सिकल सेल के लिए टेस्ट करा लें।
nearly all tribal community living in the forest territories across the country and have cases of the sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a genetic disorder that cannot be cured only by any means of treatment, या any pathies can treat. However, with the appropriate state-of-the-art diagnosis and intervention strategies, the disease burden at the population level can be reduced. हम क्या कर सकते हैं? ऐसी बीमारी जिसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, उसकी रोकथाम के लिए काम कर सकते हैं, और जो पेशेंट है उसकी सफरिंग को कैसे करना चाहिए, हम जो कर सकते हैं उसके लिए तो प्रयास करें, तो वो भी नहीं करते हैं लोग। आप देखिए, अगर मैं स्टेट ऑफ एमपी की बात करूं, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और मैं इंदौर में हूं, और इंदौर के सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में काफी सारा परेशानी है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। एज पर अ रिपोर्ट बाय द नेशनल हेल्थ मिशन in Madhya Pradesh, the state has the highest burden of the sickle cell anemia in India. It is further says an ICMR study done in 2007 found that 10 to 33% of the tribal population in the Madhya Pradesh is sickle gene affected and 0.7% are sickle cell disease. मैंने इसके बाद का डाटा बहुत सारा खोजने की कोशिश किया था, लेकिन 2007 के बाद का डाटा हमको मिल नहीं पाया, तो इसलिए हमने उसके बाद का अभी दिया नहीं है। पर हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारा प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट along with the ICMR along with the आयुष मिलकर के काफी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको रोक पाएंगे। अगर मैं कॉम्प्लिकेशन की बात करूं तो कॉम्प्लिकेशन में स्प्लीनिंग इंक्रीज है, शॉर्टनेस ऑफ द रेड ब्लड सेल या एनीमिया, पेन एपिसोड। पेन एपिसोड में क्या होता है, रात में बच्चे या जो सिकल सेल डिसीज से पीड़ित है वो सोएगा, नॉर्मल सोएगा, लेकिन रात में अचानक उसको पेट में दर्द होने लगेगा या लिम्ब पेन होने लगेगा, और रात में ही उठ करके बच्चे रोने लगते हैं, और पेरेंट्स क्या करें उनको कुछ समझ में नहीं आता है। इस तरीके की परेशानी हो जाती है। उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, निमोनिया के फीचर्स हो सकते हैं, चेस्ट सिंड्रोम हो सकता है, और इंक्रीज्ड इन्फेक्शंस हो सकता है। आप देखेंगे कि एनीमिया जिसको है उसको क्या होगा कि उसका बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और हर थोड़े थोड़े दिन में वो बीमार हो जाएगा। तो हम होम्योपैथी से क्या कर सकते हैं, अगर हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट दें तो होम्योपैथी से हम उसका जो रिकरेंट इन्फेक्शन का है उसको रोक सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। यदि हम इतना कर दें कि मरीज बार बार बीमार नहीं हो, तो बार बार बीमार नहीं होगा तो उसको बार बार जल्दी जल्दी ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ेगा। अगर हम 10 ग्राम हीमोग्लोबिन पर मेंटेन करके रख दें पेशेंट को, तो ये भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो 13 ग्राम टू 15 ग्राम % है, या फिर कुछ दूसरी किताबों में 13.5 टू 16 ग्राम % लिखा हुआ है। तो अगर 13 ग्राम % किसी का हीमोग्लोबिन नहीं है, लेकिन 9 से 10 ग्राम % भी हीमोग्लोबिन है, तो भी वो नॉर्मल जैसा लाइफ व्यतीत कर सकता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में हम देखते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उनके जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो 5 टू 6 ग्राम % के आसपास रहता है, और वो उनको डॉक्टर लोग समझाते हैं कि 7 ग्राम % के आसपास उसको मेंटेन करके रखना है। उसके लिए उनको बार बार ब्लड चढ़ाते हैं। तो बार बार ब्लड चढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये और बर्डन है, पेशेंट के ऊपर भी बर्डन है और उसके पेरेंट्स के ऊपर भी बर्डन है, हेल्थ वाइज भी बर्डन है, मॉनिटरी वाइज भी बर्डन है। इतना ब्लड कहाँ से आएगा और इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो वो एक बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा अगर हम होम्योपैथी तरीके से इन्फेक्शन को रोक सकें, अगर हम पेशेंट का इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें और पेशेंट को अगर हम बीमार होने से रोक सकें, तो ये बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। हम कैसे इसको जान सकते हैं, पेशेंट को जानने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी लैब में जाएंगे, सीबीसी कराएंगे, आपको कंप्लीट ब्लड काउंट कराना है, या फिर ब्लड स्मीयर बनाना है, या फिर हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराना है, उससे आपको पता चल जाता है कि उसको सिकल सेल की बीमारी है या नहीं है।
तो इस तरीके से सिकल सेल एनीमिया कैन बी प्रिवेंटेड एंड couple at a risk of having affected children can be identified, and by the inexpensive and reliable blood test, chronic Villiers sampling from the 9 week of pregnancy can be performed for the prenatal diagnosis. अगर हम प्रीनेटल डायग्नोसिस में ही देखने लग जाए तो ये हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाएगा। हम अगर बच्चा पैदा होने के पहले ही डायग्नोस कर लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, पर सबसे अच्छा जो तरीका है वो शादी के पहले हम टेस्ट कराना चाहेंगे, और मैं गवर्नमेंट को बार बार इसके लिए लिख रहा हूं और भी लिखूंगा मैं, क्योंकि अब बजट में प्रोविजन हो गया है तो सभी गवर्नमेंट काम करेंगी और अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा है स्टेट को इससे, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का। पहले क्या होता था कि बजट में लोग ये देखते थे कि कितना टैक्स कम किया या कितना टैक्स बढ़ाया। इस बार ऐसा हुआ कि किसी बीमारी के ऊपर इतना अच्छा उनका फोकस रहा। अगर 2047 तक हम एनीमिया को खत्म नहीं कर पाए, अगर कंट्रोल भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा स्टेप होगा, और उसमें अगर मेरी भागीदारी है तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मान सकूंगा। अब आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं? देयर आर लिस्ट ऑफ मेडिसिन्स इन होम्योपैथी फॉर एनीमिया। सबसे बेस्ट मेडिसिन की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज द फेरम मेटालिकम। जो लोग फेरम मेटालिकम पढ़े होंगे उनको मालूम है कि फेरम मेटालिकम जो है वो बोन पेन के लिए बहुत अच्छी दवाई है, और मैं अभी सिकल सेल में बात कर रहा था कि उसको पेन बहुत ज्यादा होता है। फेरम मेटालिकम में फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है फेरम मेटालिकम, एंड वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए काम में आती है। तो 3 जो मेजर सिम्टम्स है वो हमारा फेरम मेटालिकम कवर कर रहा है। कहने का मतलब है कि बोन पेन कवर कर रहा है, फीवर कवर कर रहा है, वीकनेस कवर कर रहा है, और हीमोग्लोबिन बढ़ा रहा है। तो ड्रग ऑफ चॉइस इज द फेरम मेटालिकम। जो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी दैट इज द सिनकोना ऑफिसिनालिस, चाइना भी सबको पता है। अगर आप देखेंगे, अगर एनीमिया के दूसरे लक्षणों की मैं बात करूं तो फीमेल्स की बात करूं तो मेरे पास ऐसी काफी सारी फीमेल्स आती हैं जिसका मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 15 दिन से लेकर के 6 मंथ तक चलता रहता है, और सिनकोना इज द मेडिसिन जिसमें लिखा हुआ है कि लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के लिए बेस्ट मेडिसिन है। तो इसलिए सिनकोना भी मेरी अनदर ड्रग ऑफ चॉइस है, जिसको हम देने से एनीमिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड के कारण भी जो उनको परेशानी होती है उसके लिए भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अनदर मेडिसिन इज फास्फोरस। फास्फोरस भी रेड ब्लड सेल बढ़ाने के लिए काफी अच्छी मेडिसिन है। अनदर मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। मुझे लगता है कि पिछले 2 सालों में जितना आर्सेनिक एल्बम पे बात की गई होगी इससे पहले 200 सालों में कभी नहीं की गई होगी। तो आर्सेनिक एल्बम इज द मेडिसिन जिसको देने से मरीज का बार बार इन्फेक्शन होना कम हो जाएगा और उसका इम्यूनिटी लेवल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज कैलकेरिया फास। कैलकेरिया फास और फेरम फास दोनों जो मेडिसिन है, कैलकेरिया फास देने से उसका बोन स्ट्रांग होएगा, और फेरम फास देने से अगेन हमारा आयरन लेवल बढ़ेगा। तो उस तरीके से हम पेशेंट्स को डायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं। कैलकेरिया फास और फेरम फास मैं 3x ट्राइचुरेशन में देता हूं। नेक्स्ट मेडिसिन इज सियोनेथस। सियोनेथस देने से भी काफी बेनिफिट होता है मरीजों को। मैं केवल उतनी ही मेडिसिन की बात करूंगा जिस पे मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूं। वैसे वी आर हैविंग अ लिस्ट ऑफ मेडिसिन इन द मटेरिया मेडिका, तो वो सबको पता ही है लिस्ट ऑफ मेडिसिन। अब आती है जो बात है वो है डाइटेटरी सप्लीमेंट। अगर एनीमिया का पेशेंट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, एनीमिया का पेशेंट है तो हम उसको क्या खाने का सलाह दें? होम्योपैथी दवाई के अलावा एनीमिया के पेशेंट्स को हम क्या दे सकते हैं? तो उसमें सबसे आसान सा तरीका है भुना हुआ चना और गुड़। हमारे घर में भुना हुआ चना और गुड़ अवेलेबल है, सभी के घर में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके अलावा हम गर्म दूध में हल्दी दे सकते हैं। मैं इस तरीके का चार्ट बना करके सभी पेशेंट्स को देता हूं। बादाम भुनी हुई दे सकते हैं, रोस्टेड। भिगो करके बादाम देने का लोग सलाह देते हैं, पर भिगो करके देने से कई बार इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए भिगो करके नहीं देना है।
सोयाबीन रोस्टेड दे सकते हैं, पालक दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, पिंड खजूर दे सकते हैं, सत्तू, कई प्रदेशों में सत्तू होता है, गुड़ के साथ सत्तू दे सकते हैं, गेहूं का दलिया दे सकते हैं दूध और गुड़ के साथ, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, चीकू दे सकते हैं, चुकंदर, सेव, एप्पल दैट इज अनार, किशमिश, मुनक्का, छुहारा, अंजीर, या फिर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो मछली या एग ले सकते हैं। तो इसका डाइटेटरी सप्लीमेंट का बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। जब हम मेडिसिन के साथ डाइटेटरी सप्लीमेंट दिलाते हैं तो जो लोग मछली खाते हैं, मछली मतलब फिश मतलब फर्स्ट क्लास प्रोटीन लेंगे तो उसका बहुत जल्दी बॉडी पे इफेक्ट आता है। और उसके साथ में गुड़ की सलाह देता हूँ, गुड़ लेते हैं, आयरन रिच है। अगर मैं अभी जो मौसम है ठंड का मौसम है तो मैं लोगों को सलाह देता हूं कि गुड़ और ड्राई फ्रूट का लड्डू खाइए, उससे हमारा बोन स्ट्रांग होता है, बोन मैरो स्ट्रांग होता है और हीमोग्लोबिन बेहतर बन जाता है। हमारे पूर्वजों को ये पता था कि जब हम ठंड में लड्डू खाएंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे मतलब हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होगी तो हम बीमार नहीं होंगे। हम अगर आयरन और प्रोटीन की मात्रा सफिशिएंट लेंगे तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हड्डी मजबूत रहेगी तो हमारा बोन मैरो मजबूत रहेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रांग बोन्स है उसी में बोन मैरो होता है और बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स बनते हैं। तो इस तरीके से डाइट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि इलाज करना। और मैं अप्लास्टिक एनीमिया पर काफी अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे पेशेंट्स जो भारत के सभी एम्स और पीजीआई में पहले दिखाते हैं और वहां पे बोल दिया जाता है कि आप ठीक ही नहीं हो सकते हैं, उनको हम लोग ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी जानकारी उच्च स्तर पे सभी मिनिस्टर्स को भी है और सभी विभाग को भी मैं समय समय पर देते रहता हूँ। इसके साथ मैं काफी सारा स्टडी करते रहता हूँ सिकल सेल एनीमिया पे, खास करके चिल्ड्रंस पे, महिलाओं पे। मैं स्कूल में जाकर के लोगों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कैंप करके बताते हैं, उनके लक्षण पूछते हैं तो बच्चे बताते हैं कि आंख से धुंधलापन दिखता है या फिर सिर दर्द होता है या कमजोरी लगता है, तो उनको डाइटेटरी सप्लीमेंट से हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में हम लोग झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और इंदौर डिवीजन के डिफरेंट एरियाज में स्क्रीनिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम टोटल नंबर ऑफ केसेस पा सकेंगे। इस पे हमारे बहुत सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जाते जाइए। ये हमारे रिसर्च पेपर है जो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। नेक्स्ट और नेक्स्ट। इस तरीके से मेरे शहर में हम लोग हर साल लास्ट संडे ऑफ फरवरी से लेकर फर्स्ट संडे ऑफ मार्च तक, 4 मार्च को प्लास्टिक एनीमिया डे मनाया जाता है। तो हम लोग हर साल लास्ट संडे ऑफ द फरवरी मतलब 26-27 तारीख को जो भी संडे आता है वहां से लेकर के और फर्स्ट संडे ऑफ द मार्च तक शहर में एक एनीमिया के लिए रथ चलाते हैं। और उस रथ में हमारे जो चिकित्सा कर्मी होते हैं वो लोगों के घर घर जाते हैं और उनको एनीमिया के लक्षण के बारे में बताते हैं, क्या खान पान अपनाना है वो बताते हैं। उससे काफी लोगों को बेनिफिट मिला है। हमने अभी पिछले साल 100 स्वस्थ महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच कराया था, तो 100 स्वस्थ महिलाओं में जो खुद को स्वस्थ समझती थी उसमें 48 फीमेल्स का हीमोग्लोबिन 10% से नीचे आया था। और बहुत ही आश्चर्यजनक था, लगभग 8 से 10 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम परसेंट आया था। जब उनको हमने पूछा कि आपको कोई परेशानी होती है तो वो लोग बोले कि हाँ, कमजोरी लगती है, दर्द लगता है तो दर्द की गोली खा करके और वो काम पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा बोन मैरो और कमजोर हो जाता है, सप्रेस हो जाता है और जटिल बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट। तो अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत बड़े मास ऑफ द पॉपुलेशन को इस बीमारी के बढ़ने से बचा सकेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक ऑन द सिकल सेल एनीमिया।
अगर मुझे लगता है कि मेरे जैसे कुछ 10-20 लोग भी उनके एरिया में, अलग अलग एरिया में काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एनीमिया से हम काफी लार्ज पॉपुलेशन को बचा सकेंगे। थैंक यू अमिता जी। एनी क्वेश्चंस? हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। सो मच सर। हाँ जी सर, मैं- प्लीज कंटिन्यू। पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा कि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से बहुत लेट ज्वाइन हो पाया है, तो काफी चीजें मिस हो गई हैं, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। आपको दूसरी आपको बात, पीपीटी दे देंगे अमिता जी, कोई मिस नहीं हुआ है, सारा कुछ आजकल पीपीटी में अवेलेबल है, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। कोई बात नहीं, तो हम जी। एक काम करते हैं, मेरे दो तीन प्रश्न हैं इसमें। जी आपका प्रिवेंशन के लिए जहाँ तक सवाल है, जी आपने बड़ा अच्छा एस्पेक्ट लिया था, तो जी। इसमें आपका ल्यूटिकम का कुछ एक्सपीरियंस है, दिया नहीं है सर, कि नहीं? मैंने बोला कि मैं रेयर मेडिसिन बहुत कम काम मैं यूज करता हूँ, मैं बट हमेशा ल्यूटिकम तो मेरा मतलब है कि ल्यूटिकम तो सिफिलिनम है, जी उसमें सर सिफिलिस, एज ए मैं आपके प्रश्न का बहुत समुचित जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास अभी प्लीज। पिछले 6 महीने में 2 पेशेंट आए। दोनों पेशेंट हाँ कब आए? जब उनकी शादी हो गई। तो आप सिफिलिनम हाँ अब देके क्या करोगे? मैंने उसको डांट लगाई कि जब तेरे को पता था कि तुमको सिकल सेल एनीमिया है, तो तुमने शादी करने हाँ से पहले क्यों नहीं जांच कराया? तुमने छुपा करके हम्म, शादी क्यों किया? दूसरा हाँ पेशेंट हाँ का भाई आप सुनिए, बहुत आश्चर्यजनक केस मैं बता रहा हूँ। एक फीमेल आई, उसको 2 बच्चे हैं। पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी हो गया, दूसरा बच्चा वो शहर में आई तो उसको उस समय प्रॉब्लम हो गया, उसको सिजेरियन होना था। ब्लड की जांच कराई गई, एनीमिया निकला। जब और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में गए तो वो लेडी को सिकल सेल एनीमिया था, और उस लेडी को पता ही नहीं था। एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से पैदा भी हो गया, दूसरा बच्चा जब पैदा होने को आया तब डायग्नोस हुआ, तब पता चला उसको सिकल सेल एनीमिया है मदर को। हमारे देश की हाल अभी भी ऐसी है भाई साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब फीमेल्स एडल्ट हो जाती हैं, शादी हो जाती है, उनको बच्चे होना होता है, तब तक उनको उनका ब्लड ग्रुप नहीं पता रहता है। तो आप कैसे रोक सकेंगे इतनी बड़ी बीमारी को? फिर भी नहीं अपना वो तो नहीं, यहाँ पर ये था जी, कि देखिए, पूरे पॉपुलेशन को सिफिलिनम बांट दिया जाए ऐसा? नहीं, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं है। जी मैं देखिए उस चीज के अगेंस्ट हूँ कि जैसे कि कोविड के दौरान हुआ था कि सारी पॉपुलेशन में CPI 200 बांट दीजिएगा। सॉरी, मैं उस चीज से सहमत नहीं हूँ। ठीक है, जी मेरा देखिए जी कि मेरा एक मत है कि जब थैलेसीमिया माइनर को हम उसमें हमारा रोल हो जाता है, जी तो क्या बिल्कुल। उस मामले में आपका एफर्ट हुआ है या नहीं? क्योंकि आफ्टर ऑल RBC का जो उसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंजेस आती हैं, बिल्कुल वही चीज सिकल सेल से, तो इसकी वजह नहीं, से मेरा प्रश्न सिकल सेल और थैलासीमिया में थोड़ा सा डिफरेंस है। थैलासीमिया में क्या हम्म होता है, उसको जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है वो पैदा होने के बाद हम्म सर्कुलेट होता है ब्लड में, जबकि वो 4 हम्म, महीने में एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए। तो जब फीटल ओके हीमोग्लोबिन सर्कुलेट होगा तो उसको ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी। फीटल हीमोग्लोबिन जो हम्म बनाया गया था वो माँ के पेट के लिए बनाया गया था, उस समय उसको हम्म, माँ से ऑक्सीजन लेना होता था। और जब वो बॉर्न हो जाएगा तो 4 महीने बाद पूरा फीटल हीमोग्लोबिन एडल्ट हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाना चाहिए, और वो नहीं होता है, उसके लिए वो थैलासीमिया हो जाता है। और यहाँ पे ठीक जो है। है वो आरबीसी का शेप ही चेंज हो जा रहा है। दोनों ही सिमिलर काइंड ऑफ डिसीज है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में चेंजेस है। वहां पे हीमोग्लोबिन जो था, एडल्ट हीमोग्लोबिन और फीटल हीमोग्लोबिन वो है, और यहाँ पे आरबीसी के शेप में चेंजेस है। ठीक है, जी क्या क्या हम प्रेगनेंसी से पहले इस चीज को कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना सर, उसी के लिए तो एजुकेट करना है, उसी के लिए तो मेरा मैटर था कि जब तक सरकार ब्रॉड लेवल पे नहीं बात करेगी, जब तक सरकार उसको बजट में नहीं लेगी, जब तक सरकार उसके लिए उसको डिपार्टमेंट को नहीं लिखेगी, तब तक कैसे होगा? जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो ट्राइबल स्तर की बीमारी है ना, जो ट्राइबल बैकग्राउंड है उनको बहुत ब्रॉड लेवल पे एजुकेशन की जरूरत है। तो एजुकेशन हम कैसे देंगे? उस एरिया में जो आया बाई है, या उस एरिया में जो हमारा ये आंगनवाड़ी है, उनको समझाना पड़ेगा ना। जब तक आंगनवाड़ी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम घर तक कैसे पहुंचेंगे? मतलब हमको हर घर तक पहुंचना होगा,
तब हम इसका स्क्रीनिंग कर पाएंगे, तब हम इनको समझा पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और अब मैं तो यही फील करता हूँ कि जैसे आपकी एफर्ट चलती रही है जी सर। उसका शायद ये सरकार के कानों में थोड़ा कुछ पहुंच गई है। अब तो बहुत कुछ पहुंच गई ना, राष्ट्रपति महोदया ने भी इसलिए उसको समझ लिया। इसीलिए इस बार बजट में इसके ऊपर फोकस किया गया है। तो वो तो आपका Secondly- आशीर्वाद है ना सर, इसलिए तो हुआ। सेकेंडली देखिए, सिनोसस अमेरिकाना का तो काफी इम्पोर्टेंट रोल है। मैं तो खुद मदर टिंचर में इस्तेमाल करता हूँ इसको और काफी अच्छा रिजल्ट देखता हूँ। एक मेडिसिन और भी है जो कि शायद कमती ट्राई की गई है, मैंने भी कमती की है, रूबिया टिंचर। तो सर मदर टिंचर मैं भी यूज करता हूँ, अगर कोई मदर टिंचर आपको लगता है तो मुझे बताइए। मैं मदर टिंचर, ट्राइचुरेशन, पोटेंसी और 50 मिलीस्मल, मैं सभी प्रकार का दवाई यूज करता हूँ। मैं होलिस्टिक ठीक है। अप्रोच में बिलीव करता हूँ, और अगर कुछ ऐसा है जो एनीमिया के लिए लाभदायक है तो मुझे जरूर बताइए। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। मैं एनीमिया के सभी टाइप्स पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं पूरे दुनिया से आते हैं, और मरीजों की हालत ऐसी होती है कि 2.3 या 3 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और प्लेटलेट 2000 या 5000 होता है, और उनके गम से ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग, आईज ब्लीडिंग होती रहती है, यूरिन से ब्लड और स्टूल से ब्लड जाता रहता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि तुरंत ब्लीडिंग को रोकना। अस्पताल में एडमिट Correct. होते हैं, ब्लड चढ़ता रहता है, प्लेटलेट चढ़ता रहता है, एसडीपी चढ़ता रहता है, वो लोग इंजेक्शन लगाते रहते हैं, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो है वो 2000 5000 होता है। जब तक प्लेटलेट काउंट 20,000 नहीं रहेगा, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं। तो अगर ऐसा कोई भी मेडिसिन है तो प्लीज जरूर बताइए, वो बहुत ही मास लेवल पे हेल्प करेगी सर। तो जो उस लेवल के केसेस के ऊपर जी जो मेडिसिन है जो कि यानी जैसे वाइपेरा है, अपना लैकेसिस है, और जितनी लैकेसिस जो तो मैं यूज करता हूँ सर, वाइपेरा अभी यूज नहीं करा, मैं करूंगा, वाइपेरा यूज करके देखूंगा मैं। क्रोटेलस 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 यूज वॉरिडस किया, क्रोटेलस यूज कर लिया मैंने, क्रोटेलस और लैकेसिस मैंने यूज किया, पर कंट्रोल नहीं हो ठीक है। पाता है। जी हाँ, ओके ओके। वाइपेरा मैं जरूर यूज कर लूंगा। वाइपेरा मैंने शायद कहीं मिस हो गया, नहीं यूज करा अभी, पर मैं करूंगा। मैंने कहा 12 पोटेंसी के अंदर मिलती तो आई थिंक यू नो वो ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पांस आ रहा है। बट क्रोटेलस मैंने 6 पोटेंसी में इस्तेमाल जरूर किया है, अच्छा, तो ये शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में नहीं थोड़ा सा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कर रहे हैं ना भाई, आपका एक्सपीरियंस आएगा। जरूरी थोड़ी है कि हम एक्सपीरियंस गेन करने के लिए 20 साल नुकसान करें हमारा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और बाकी जो मेरा फीलिंग है कि जी जहाँ तक आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है जी सर। डाइट के मामले में, और जी वो चीज़ें आपने बताई हैं जो कि बहुत रोज़मर्रा घर पे इस्तेमाल हाँ, जो हो हमारे सकती यहाँ है और अवेलेबल महंगी है भी मैं नहीं है। वैसे ही बात करता हूँ। कई लोग मेरे बिल्कुल पास बिल्कुल आते ठीक हैं, है। बोलते हैं कि मैं कीवी खा लूं। अब कीवी हर जगह हाँ, तो अवेलेबल नहीं है, मैं बोलूं कीवी खाओ बिल्कुल ठीक तो है। बेचारा ढूंढता रहेगा कीवी। नहीं नहीं, ठीक बात है। जो लोकल लोकल प्रोड्यूसर जहाँ इजीली अवेलेबल है हाँ, जो उसका इजी रोल बहुत अवेलेबल। ज़्यादा है। और बाकी तो जहाँ तक मेरा अगेन माय ओन फीलिंग इज जी कि सिनोथस अमेरिकाना का रोल भी है, इट इज वेरी मच लाइक ए हाँ, न्यूट्रास्यूटिकल। सियोनेथस मैं यूज करता हूँ सर। ठीक है ना। जी बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so इंटरेक्शन much. आपके साथ अच्छा लगा। Thank you. Any other queries? Anybody else who wants to ask anything to Dr. A.K. Dwivedi? सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे हाँ कि बोलिए ना। सर आयरन जब हम पेशेंट को देते हैं, किसी भी फॉर्म में जब आयरन लिया जाता है, जी तो उसका एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है एब्जॉर्प्शन का, बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आयरन बहुत अच्छे से, जिसके लिए हमें साथ में जिंक का सपोर्ट देना पड़ता है कई बार। उसके लिए हमको कैल्शियम और कोबाल्ट लेना पड़ेगा। तो कैल्शियम के लिए मैंने मिल्क लिखा हुआ है मेरे डाइटेटरी सप्लीमेंट में, और विटामिन सी में मैंने रिचेस्ट सोर्स जो है आंवला, उसकी बात किया हुआ है। आयरन का बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन की बहुत प्रॉब्लम है, केवल खाने से नहीं, कई बार एब्जॉर्प्शन के कारण भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है कि खा तो। कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी हो जाता है काफी पेशेंट्स को। तो मैडम उसके लिए मैंने प्रयास करा था, पर मेरा सपोर्ट नहीं किसी ने किया, कि जो आंगनबाड़ियों में और स्कूलों में एलोपैथी का आयरन और कैल्शियम की टैबलेट दी जा रही है, उसके बजाय कैलकेरिया फास और फेरम फास डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैंने इंटरनेशनल फोरम पे भी ये बात उठाया था। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में शिखा दुबे पीएस थी,
प्रिंसिपल सेक्रेटरी आयुष, उन्होंने मेरे से पूछा था कि एक टैबलेट कैलकेरिया फास में कितना ग्राम कैल्शियम मिलेगा और एक टैबलेट फेरम फास में कितना आयरन मिलेगा। ये मैंने बीजेन वालों से भी पूछा, बक्सी जी से भी पूछा, कई सारी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से भी पूछा, सीसीआरएच में भी रखा और इंटरनेशनल फोरम पे भी रखा, पर मुझे आज तक किसी ने जवाब नहीं दे पाया, जिसके कारण ये प्रोजेक्ट रुक गया। नहीं तो हमारे 3 जिले में ये प्रोजेक्ट सेंक्शन हो गया था कि जहां पर एलोपैथी का आयरन और कैल्शियम दिया जा रहा है, उसके बजाय कैलकेरिया फास और फेरम फास दिया जाए, जिससे उन बच्चों को होने वाले डायरिया या कॉन्स्टिपेशन को रोका जा सके। तो इस पे और फर्दर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी जो लिखती है ना कि 3x की ये टेबलेट है, तो उसमें उनको मात्रा भी लिखना पड़ेगा, तब हमारे आईएएस लोग इसको वैल्यू देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू। यहाँ आपका डॉक्टर साहब का कहना बिल्कुल सही है कि ये प्रॉब्लम प्रैक्टिकली है। और बाकी तो ज़्यादातर जो आप देखते हैं कैलकेरिया फास और फेरम फास, जो कि डेंटिशियन डायरिया के नाम पे बहुत बिकता है, बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 1 के नंबर शायद 21 है। यस सर वाही सर बहुत बिकता है और बहुत कमाते हैं, वो अलग बात है। जब आईएएस होता है ना, तो आईएएस को क्या है कि हमको देना पड़ेगा ना, वो आईएएस ने हमसे मांग लिया, मैंने वो ढूंढता था, उसको 6 महीने से साल भर में दे नहीं पाया, वो प्रोजेक्ट तो हमारा फेल हो गया ना। बिल्कुल ठीक है। नहीं, उनको लेकिन से भाई 3x के अंदर कितना भाई, आफ्टर मॉलिक्यूलर सब डिवीजन के बाद ही तो है ना वो। यस, वो देना पड़ेगा ना हमको। मैंने बोला हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। मैं आपसे इस मामले में 100% सहमत हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है। और ये चीजें आगे मैं बताता हूँ, आगे आगे धीरे करके ये चीजें आएंगी। बिल्कुल रिसर्च ओरिएंटेड तो होना ही पड़ेगा ना, हमको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा और मॉडर्न लोगों को मॉडर्न तरीके से समझाना भी पड़ेगा, जो हम कर नहीं पा रहे हैं। भाई काम करती है, हम देखते हैं रोज ही काम करती है। कैलकेरिया फास देने से, फेरम फास देने से आयरन बढ़ता है, उसका क्या हड्डी भी मजबूत होती है, लेकिन कितना है, अगर वो तो बहुत आसान है आजकल भाई, एक टेबलेट में कितना ग्राम है वो कैलकुलेट करके कंपनी बताए ना हमको, तो हमारे लिए बहुत इजी आसान है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर शैलजा सर, पुणे से डॉक्टर शैलजा शर्मा। सर मैं अभी मेरे कुछ पेशेंट्स में नॉट फॉर मतलब एनीमिक ही पेशेंट है, ऐसा नहीं सर, विटामिन डी प्लस करके एक वैक्सीन का मेडिसिन है सर, और इस पर मेंशन है सर कि कितना उसमें कैल्शियम है, विटामिन सी, आयरन, ऑल इज मेंशन, एंड दिस इज आवर होम्योपैथिक वन सर, सो वी कैन सजेस्ट फॉर दिस सर। मैडम आप D3 की बात कर रही हैं, तो विटामिन D3 उसमें ऐसा मेंशन होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनिट उसमें कितना है विटामिन D3 का। जिस तरीके से एलोपैथिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उस तरीके से हमको इंटरनेशनल यूनिट में बताना पड़ेगा। राइट सर, राइट, ओके। नहीं वो ठीक है। देखिए ये मैं आपको डॉक्टर शैलजा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने बहरहाल एक कंपनी का जिक्र किया वैक्सीन्स का, तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है उनके इसमें, उन्होंने इंटरनेशनल यूनिट तो लिखे हुए हैं, बट मेरे चाहे कोई एलोपैथिक कंपनी बनाए या होम्योपैथिक कंपनी बनाए, बेसिकली वो न्यूट्रास्यूटिकल ही है, बेसिकली वो न्यूट्रास्यूटिकल ही है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो जो डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है कि हमको उसके अंदर जो टर्म लोग बाग जो ज्यादा कम्युनिटी समझती है, हमको उस पर ही उस हिसाब से लिखना चाहिए। तो ये चीजें मेरे ख्याल से आ जाएंगी, ड्रग रूल्स के अंदर अमेंडमेंट में आएंगी ये चीजें ग्रेजुअली। राइट सर, राइट राइट सर, थैंक यू सर। मेरा एक प्रश्न था। हाँ जी डॉक्टर सत्य प्रकाश। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता था, मैं आरबीएस के डॉक्टर हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ भिंड जिले में पदस्थ हूँ। तो सर ने जैसे बताया कि हम आंगनवाड़ी और स्कूलों में जो गवर्नमेंट के द्वारा ब्लू और आयरन टैबलेट दी जाती है, तो उसकी जगह हम अपनी होम्योपैथी में मतलब क्या डोज के हिसाब से उनको दे सकते हैं, जैसे स्क्रीनिंग के लिए हम लोग जाते हैं फील्ड पे।
तो डॉक्टर साहब आप गवर्नमेंट में पदस्थ हैं, तो आप अपने यहाँ डिमांड करिए ना कि जहाँ पे स्कूलों में एलोपैथिक आयरन और कैल्शियम बांटी जा रही है, उसके बजाय कैलकेरिया फास और फेरम फास की टेबलेट बच्चों को दे दी जाए। 2-2 टेबलेट सुबह शाम अगर कैलकेरिया फास उनको मिल्क में दिया जाए और 2 टेबलेट उनको फेरम फास दिया जाए, तो उससे उनको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी जो कैलकेरिया फास और फेरम फास है उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर है। जी जी, मैं इसको बात रखूंगा। एक बार हमारे लिए लेटर भी आया था 2018 में, डॉक्टर विनय कुमार दुबे सर थे इसके डिप्टी डायरेक्टर के आयुष डॉक्टर्स को होम्योपैथी और आयुर्वेदिक उनकी पैथी की दवा देने को। फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि इसका यदि आपके पास पूरा वो डोज का वो हो कि कितना डोज वगैरह देने के लिए, तो हम डिमांड रखें अपने डिप्टी डायरेक्टर से। आपको भी देंगे एमडी मैडम है जैसे प्रियंका दास मैम के, क्योंकि अभी इस पे ज्यादा कार्य चल रहा है अनीमिया मुक्त भारत पे अभी हम लोगों को। जब राज्यपाल जी के यहाँ बैठक थी तो उसमें प्रियंका दास मैडम भी बैठी हुई थी। बिल्कुल हम उनको भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको भी दी जाएगी। जी जी, आप भी अपने तरफ से कोशिश करिए, हमारे तरफ से भी पूरा कोशिश जारी है, जल्दी ही सफलता मिलेगी। जी जी, मैं डिमांड अपने रखूंगा, क्योंकि वो लेटर भी है मेरे पास, एक बार निकला था 18 नहीं करना ही चाहिए ना, मैंने वही बोला ना कि हर कोई अगर स्तर पे करेगा, थोड़ा थोड़ा भी प्रयास करेगा, तो डेफिनेटली वो एक समेशन बनेगा और सामूहिक तरीके से उसको बल मिलेगा। Thank you, Dr. Satyaprakash. Thank you for your query. Any other query, please? Dr. Bhavna, kindly take over now. हाँ जी, मैं डॉक्टर द्विवेदी को धन्यवाद करना चाहूंगी, और हमारा सौभाग्य है आज कि हमने सर को सुना। उन्होंने इतना यूनिक टॉपिक लिया और हमारा मार्गदर्शन किया, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स यूजुअली अगर क्लिनिक में आते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको कैसे हैंडल किया जाए, पर सर ने हमें हर तरह से बताया कि हम कोमॉर्बिडिटीज को हैंडल कर सकते हैं जो सिकल सेल डिजीज में होती हैं, प्लस हम अवेयरनेस क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि लोगों में और जागरूकता पैदा हो। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर से कि हम और टाइप ऑफ अनीमियाज जो सर कह रहे हैं कि उन पे भी सर वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम एक एक करके आपसे जरूर सुने और अपनी नॉलेज को भी हम स्ट्रॉन्ग करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमने बहुत गेन किया आज के लेक्चर से आपसे। थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ पर अमिता से एक बात कहूँगा कि अब जो, क्योंकि इस बार बजट के अंदर स्पेशल रेफरेंस है सिकल सेल एनीमिया के लिए, तो अभी से अगर हम लोग प्रोएक्टिवली अगर गवर्नमेंट को लिखें, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो प्रेस्क्राइबिंग की सिस्टम की हमारी जो वर्थ है, उसको अगर रिसर्च प्रोडक्ट में अगर प्रॉपर स्थान मिल गया और उसके हिसाब से कोई प्रोटोकॉल वगैरह तैयार होता है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हमको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। जो एफर्ट डॉक्टर दिल्ली ने काफ़ी किया है, तो ये है इन्हीं के मार्गदर्शन में और अलॉन्ग विद CCRH। तो अगर हम लोग नॉट ओनली फ्रॉम द फोरम ऑफ IHF, अदर फोरम्स आल्सो जो इंटरनेशनल लेवल की बॉडीज हैं, उसमें हमको प्रोवोक करने से कि इसको डायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो चुका है, इसलिए हमें अपने इन्वॉल्वमेंट के लिए बराबर बिल्कुल लिखेंगे सर, लिखेंगे, आप तो गाइड करिए, बिल्कुल लिखेंगे। ठीक है सर, तो मैं एक लेटर ड्राफ्ट करके आपको सर भेज दूंगी, टीम के साथ शेयर कर लूंगी, एंड डॉक्टर द्विवेदी सर के भी जो सजेशंस और इनपुट्स होंगे वो हम ले लेंगे सर से। एंड आई वुड आल्सो से कि IHF का भी जितना सपोर्ट आपको आगे चाहिए इन सब चीजों में, जो कि बहुत ही अच्छा कॉज है, बहुत अच्छी आपने एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो है वो रेज करी एंड बहुत जल्दी इस पे काम हुआ, दैट इज आल्सो एन अचीवमेंट। तो वी विल नीड योर गाइडेंस, योर सपोर्ट कि हम आगे इस पे और वर्क कर सकें। बहुत सारा लूज मोशन है, क्या से पेन वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल ही है। तो 6 जनवरी की बात है ना? हाँ जी। So now moving forward, I want to thank Dr. A.K. Dwivedi sir for his presentation. All the doctors, students, team IHF for their effort for organizing such webinars. So our next webinar will be on 10th of March,
at 8:30 p.m. 8:30 to 9:30 p.m. and the speaker will be Dr. Rushali Saraswat. The topic will be rare remedy in panic disorder. So this is also a very good topic. I encourage all of you to attend this, and it will be really an eye-opener session. So thank you so much everyone for your time, for your patience. Whoever needs to join IHF as a member, they can contact Dr. Gurpreet Kaur. So thank you so much, and with due permission, thank you, and I would like to close this meeting now. None. Thank you so Permission much. granted. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Jean.